Hello students and welcome back again in your geography class. I am Anand Pandey, your geography teacher. Students, as you know that now we have completed number of chapter 7 in our geography subject. Now today we are going to start the new chapter and the chapter number 8, the earthquake. And students, I hope all of you watching the videos that I have sent in the recent time and all of you understood about the explanations of the chapters that we have completed. And also I hope all of you doing the work of the exercises that are given in these chapters. Okay students, now we are going to start the chapter number 8. Now you see that in the chapter number 8 we are going to understand about the earthquakes, यानी कि हम लोग भूकंप के बारे में बेटा पढ़ने जा रहे हैं. Now what we are going to cover in this chapter, so now you see that the syllabus of portion of this chapter is given: earthquakes, meaning, causes and the measurement. First we are going to understand about the meaning, then causes and how to measure the intensity of the earthquake. Then after that we are going to understand about the effects, the destructive and the constructive. Like same volcano, both effects are present, the destructive effects and the constructive effects. Now the earthquake zone of the world. Now first we are going to understand, students, the meaning. So now in this meaning, students, all of you see that a simple definition of the earthquake is given. Now you see that an earthquake is defined as a tremor below the surface of the earth which cause shaking of the crust. These devastating tremors are caused by the stress that break the earth crust. Okay students, अब हम लोग इसको एक बार समझ लेते हैं. जो डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी है, एक्चुअली होता क्या है, जब हम अर्थक्वेक्स के झटके को अपने अर्थ पे इस्तेमाल करते हैं तो उसमें होता क्या है, जो हमारी क्रस्ट लेयर है, जैसे हम लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में, कि हमारी जो अर्थ है वो लेयर बाय लेयर है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. तो द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अवर अर्थ इज नोन एज द क्रस्ट. जो हमारे अर्थ की जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है बेटा, उसे हम लोग क्रस्ट के नाम से जानते हैं. और इसी क्रस्ट के नीचे हमें झटके लगते हैं, तो जिससे कि हमारी क्रस्ट जो होती है वो शेक करना शुरू करती है और हम लोगों को भूकंप जैसा, झटके जैसा, ट्रेमर जैसा महसूस होता है. अब ये होता कहां पे, एक्चुअली जो क्रस्ट के नीचे टेंशन क्रिएट होता है उसी की वजह से हम लोगों को ऊपर अर्थक्वेक महसूस होता है. अब उसी कॉजेस को हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर में, उसे हमें कवर करना है कि द कॉजेज ऑफ द अर्थक्वेक, हाउ द अर्थक्वेक्स अकर्स ऑन द अर्थ सरफेस. अब इसी को एक बार हम लोग समझ लेते हैं. तो नाउ यू सी दैट हियर इज गिवन द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स. Earthquakes are caused by the strain in the earth crust which turn in a result of the numbers of factors. When the earth crust is unable to accommodate itself to the strain, it results the sudden release of the tremendous energy in the form of a sudden violent shock. A series of shocks that result from the sudden earth movement now along the fault are known as the earthquake. The seismic waves. The waves spread out from the seismic focus of the earthquake and can cause widespread destructions in the area of the world. It's along the edges of the lithospheric plates. For example, down the western edge of the Pacific Ocean, earthquakes are common. The severity of the earthquakes is measured on the Richter scale. The main factors that cause earthquakes are following. Okay. अब बेटा सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि ये अर्थक्वेक हमारे अर्थ पे किस तरीके से होते हैं. जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ा सा हम लोगों को हिंट मिला कि जब अर्थ के नीचे मींस जो क्रस्ट है उसके नीचे जब एनर्जी रिलीज होती है और क्रस्ट उसको संभाल नहीं पाती है और टेंशन जब ज्यादा क्रिएट होता है तो वहां पे फॉल्टिंग होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोई चीज का टूटना. तो जो अर्थ के नीचे जो लेयर है वो उस टेंशन को संभाल नहीं पाई और ब्रेक की, उसकी वजह से क्या हुआ, ट्रिमर मतलब झटका लगा. क्योंकि हमें पता है कि अगर मान लो जैसे सपोज दैट ये बुक इस हमारे हाथ के बेस पे लगी हुई है,
जब तक ये हिल नहीं रही है, हमारा हाथ नहीं हिल रहा है, तब तक इस बुक पे कोई असर नहीं है, ये बुक ऐसे है। लेकिन सडनली अगर मेरा हाथ ऐसे हो गया तो ये बुक भी हिली, तो जो इसके ऊपर चीजें थी वो भी शेक की। तो इस तरीके से ये अर्थक्वेक जो होता है वो हमारे अर्थ पे महसूस होना शुरू होता है, मतलब अर्थ के नीचे कोई घटना घट जाना, जिसको हम लोग सेस्मिक वेव्स कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जहां पे ये टेंशन क्रिएट होता है और जब वहां पे कोई चीज टूटती है और वहां से हटती है कोई चीज, तो उसका कुछ एरिया होता है, जितने एरिया तक वो उस प्लेट का प्रभाव होता है वहां तक क्या होता है, वाइब्रेशन और ट्रिमर दिखता है, झटके आते हैं। तो आप जैसे आपने सुना होगा, अगर एक मैं एग्जांपल दूं, जैसे नेपाल में 2014 में नेपाल में जो अर्थक्वेक अकर हुआ था, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि नेपाल में भूकंप आया और हम लोग गोरखपुर में भी हम लोगों ने उसके एक के बाद एक झटके महसूस किए। तो एक्चुअली वी ऑल आर कनेक्टेड द प्लेट्स, हम लोग क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स से कनेक्टेड है। तो अभी हम लोग आगे उसको टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो और ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों को बताता है कि जो भूकंप की तीव्रता है, जो इंटेंसिटी है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग रिचर स्केल का इस्तेमाल करते हैं कि भूकंप या अर्थक्वेक कितना पावरफुल था। अब जो पहला कॉज हम लोगों को समझना है वो समझना है वॉल्केनो। बेटा वॉल्केनो इरप्शन की वजह से भी कभी कभी कहीं पर क्या होता है, अर्थक्वेक आते हैं। नाउ वॉल्केनिक इरप्शंस आर वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स। During the volcanic eruption, hot gases are pushed upwards and they push violently and earth crust surface upward causing earthquakes. Now volcanic activities interrelated and earthquake follow a volcanic earthquake. The violent eruptions of the Krakatau volcano between the island of the Sumatra and Java caused the earthquake around a vast region. The earthquake generated the tsunami and which killed the 30,000 people in Java, Sumatra. Okay, अब हम लोग बात करते हैं वॉल्केनो का कि कैसे वॉल्केनो कारण बन जाता है अर्थक्वेक का। अब हमें पता है, जैसे अभी हम लोग वॉल्केनो पढ़ के आए, हम लोगों ने देखा कि अर्थ के अंदर जहां मेंटल लेयर है वहां पे टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण क्या होता है, जो मटेरियल्स वहां पे हैं वो लिक्विड फॉर्म में है। अब वो लिक्विड फॉर्म में है, वो बॉयल कर रहे हैं क्योंकि 2000 से ज्यादा टेम्परेचर वहां पे है। अब वो बॉयल कर रहे हैं तो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और वो कभी कभी बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं, काफी तेजी से ऊपर की तरफ आते हैं। तो जब बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आते हैं तो जैसे हमें पता है कि हमारे जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो लेयर बाय लेयर बना हुआ है। तो जब इन लेयर से हिट करता है ये प्रेशर, तो इनमें क्या होता है, इनको नुकसान पहुंचता है, ये लेयर्स टूटना शुरू होती हैं, ब्रेक करना शुरू होती हैं, गैप बनाना शुरू करती हैं। तो उसकी वजह से हम लोगों को ये अर्थक्वेक देखने को मिलता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा, जो सुनामी की हम लोग बात कर रहे थे, जावा सुमात्रा जो आइलैंड है, वहां पे जब ये वो समुद्र के बीच में, सी के बीच में, तो जब वहां पे इस तरीके का अर्थक्वेक आया तो उससे क्या हुआ, पूरा वो आइलैंड हिल गया। और आइलैंड हिलने की वजह से क्या हुआ, जो सी का वाटर था उसमें भी तेजी से तेजी वेव्स क्रिएट होना शुरू कर गई और वो वेव्स ने काफी देशों को नुकसान पहुंचाया था, इवन हमारे कंट्री इंडिया को भी नुकसान पहुंचाया था। ओके, और 30,000 से ज्यादा लोग मर गए थे। Now, plates tectonics. Now, we are going to understand the theory of plate tectonics relevant with the earthquake. According to the plate tectonic theory, the crust of the earth is made up of a series of movable plates. These plates occur on account of plates movements. When two plates slip past each or collide against each other, they edges produce faults along the lines of the weakness. The tectonic earthquakes are most frequent. These earthquakes are immensely powerful. They occur in the high-risk regions of the Pacific, of Southeast Asia, Philippines, Indonesia, and northern India, along the plate boundaries. Okay, student. अब हम लोग बात करते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। एक्चुअली अभी हम लोगों ने वॉल्केनिक को एक कॉज माना, वॉल्केनो से भी बेटा अर्थक्वेक का होता है, लेकिन वो उतने पावरफुल नहीं होते। उनको अगर रिचर स्केल पे नापा जाए तो वो
उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 4 और 5 के करीब 6 तक चला जाता है। तो 4, 5, 3 ये जो है उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन अगर हम लोग जब प्लेट टेक्टोनिक्स से जो होते हैं वो 899 तक पहुंच जाता है, जो कि काफी नुकसान पहुंचाता है। तो अब हम लोग पहले प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में जान ले। एक्चुअली जो ये प्लेट जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं ये क्रस्ट से ही बनी होती हैं और ये बेस का काम करती है हमारे क्रस्ट लेयर का, ठीक है। एंड दीज प्लेट्स आर द मूवेबल प्लेट्स। ये क्या करती है, मूव करती है। कभी कभी ये सेम डायरेक्शन में मूव कर जाती है, कभी कभी ये इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। तो होता क्या है बेटा, जब ये इस तरीके से मूव करती हैं और कभी कभी ये अपने आमने सामने आ जाती हैं और प्रेशर की वजह से ये इधर जाना चाहती है और ये इधर जाना चाहती है। तो जब कभी कभी प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये ब्रेक कर जाती हैं प्लेट्स, और जहां पर जिस एरिया में ये प्लेट्स ब्रेक करती हैं तो वो टूट गई। अब पीछे से जो उसके प्लेट आ रही है वो जगह भरेगी इसका, लेकिन जब तक वो जगह भरेगी तब तक तो वहां पे ट्रिमर आ चुका है, मतलब झटके लग चुके हैं, और वो झटके बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं जो हम लोगों के ऊपर अर्थक्वेक की तरह महसूस होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं आफ्टर शॉक आते हैं, मतलब एक बार भूकंप आ गया तो लगातार 2-3 दिन के बाद भी थोड़े थोड़े झटके हमें मिलते हैं। तो वो जो थोड़े थोड़े हमें झटके मिल रहे हैं, तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स टूटी हुई थी, फिर उसके बाद से जो पीछे से वो प्लेट्स आ रही हैं और उसकी जगह भर रही हैं, उसकी वजह से हमें हल्के हल्के झटके लगते हैं। तो इस तरीके से प्लेट टेक्टोनिक्स का काम होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। Internal horizontal and the vertical movements due to the compressional and the tensional forces now causing a folding and faulting in the earth crust. This causes the displacement of rocks in the crust, such as the imbalance causes earthquakes. For example, in 1906 and Andrews fault of California, USA gave rise a major earthquake that measured 8.3 Richter scale and broke the earth's surface. Okay, अब एक बार हम लोग फोल्डिंग और फॉल्टिंग को समझ लें। जैसे इंटरनल, हॉरिजेंटल एंड द वर्टिकल मूवमेंट ड्यू टू द कंप्रेशनल एंड द टेंशनल। ओके, अब उसके बाद से जैसे हमने भी बताया आपको कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो मूवेबल होती हैं। कभी कभी वो इस तरीके के फॉर्म में मूव कर रही होती हैं जिसको हम लोग वर्टिकल मूवमेंट बोल रहे हैं, और कभी कभी वो इस तरीके के फॉर्म में मूव कर रही हैं जिसको हम लोग हॉरिजेंटल कर रहे हैं। तो ऐसे भी कभी कभी जब ये पोजीशन आती है टेक्टोनिक प्लेट्स की, तो उनको भी ब्रेक करना होता है। वो भी टेंशन की वजह से, प्रेशर की वजह से ब्रेक करती हैं, और उससे भी ये सारी चीजें होती हैं। जैसे हम लोगों को एक बार ये चीजें पता है कि जैसे मान लो ये हमारे अर्थ का ऊपर का बेस हम मान लेते हैं इसको, और इसके ऊपर मान लो कोई चीज इस तरीके से मैंने रख दी है, और अगर नीचे से ये हाथ मेरा हट गया तो ये यहाँ की सरफेस क्या हुई, हटी, और जो यहाँ की सरफेस हटी तो जो इसके ऊपर स्ट्रक्चर्स थे, बिल्डिंग्स थे, जो भी चीजें थी उनको नुकसान पहुंचा, यहाँ पे जो लाइफ थी वो लॉस हुई। तो इस तरीके से ये अर्थक्वेक की सारी चीजें होती हैं। Okay students, I hope all of you understand this explanation video, and in the next turn we are going to complete the anatomy of the earthquake. Okay, thank you.